Good morning, dear students. I hope you all are good. So, students, in previous video we have learned chapter from history, which is traders, merchants, and craftsmen. So, in today's video, we are going to learn a chapter from geography, and the heading is already given in front. As you can see, the name of today's chapter is Our Changing Earth. So before I start explaining this lesson, I would like to tell you about the about changing of earth, like what does it mean of changing earth. So as you all know that earth is a very big planet. Okay, earth is so big and it changes time to time. समय समय पे earth change होता है. Like every day we can experience change. कभी शाम होती है और कभी दिन होता है. So that is also a kind of change. Many kind of disasters also happen, like flood, like earthquakes, like tornado. This is also a kind of change on earth, tsunamis and all. So अर्थ के चेंज होने के कुछ फैक्टर्स होते हैं. कुछ कुछ प्लेसेस बहुत ज़्यादा पहले कोल्ड हुआ करते थे, बट नाउ दे आर नॉट एज कोल्ड एज दे यूज्ड टू बी. कुछ प्लेसेस पहले नॉर्मल हुआ करते थे, अब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी. So why these things are happening, we are going to learn in this chapter. And this chapter is very interesting if you want to know how earth changes. So please pay attention on this lesson, focus on the class, and we will learn some many important points today. Okay? So what are we going to learn today? We are going to learn what are endogenic and exogenic forces. We will learn the theory of continental drift. We will learn the theory of plate tectonics. We will learn the formation of mountains, earthquake, volcanoes, major landforms. So overall we are going to learn something new today, which is very important for all of us. So let's start today's class. We have read about the interior of our earth in the previous chapter. Earlier people thought that the continents are fixed in their position. Actually, the land on which we live floats on magma which constantly moves. Okay. So in the previous lesson we have learned interior of earth. Previous lesson में हमने interior of earth के बारे में पढ़ा. For example, earth has crust, coal and mantle. So पहले हमें क्या लगता था कि अर्थ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हम लोग हैं, बट लेटर इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट अर्थ के अंदर लिक्विड मैग्मा है जिसके ऊपर सॉलिड जो है वो फ्लोट कर रहा होता है. सो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थॉट. इसी तरीके से आज भी हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो कि हमने पहले सोचा था दैट वो ऐसा होता होगा. ओके, here in this image you can see there is a lake and it is glacial lake. Glacial lake means a lake which is formed from glaciers. Okay, so glacial lake means a lake which is formed from glacier. ग्लेशियर क्या होता है? जो पहाड़ों में से पानी जो आता है, व्हेन ओशन मेल्ट्स, जब पहाड़ों में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है वो पतले से नाली में से आता है, पतली सी स्ट्रीम में से आता है, दैट इज नोन एज ग्लेशियर. ओके. The Earth's crust consists of several large and small, rigid, irregular shaped slabs or plates which carry continents and oceans floor. The plates are called lithospheric plates. These plates move very slowly due to the movement of magma inside Earth. The movement of these plates result in changes of the surface of the Earth. So बहुत ही important point है, आप प्लीज़ ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स. सो अर्थ में अर्थ कैसा बना? अर्थ एक फ्लैट सरफेस नहीं, एक बहुत बड़ा सा सॉलिड सरफेस नहीं है. अर्थ के अंदर का मटेरियल जो है वो लिक्विड है, विच इज़ मैग्मा. मैग्मा मीन्स मॉल्टन स्टोन और मटेरियल. सो मैग्मा के ऊपर सॉलिड पार्टिकल हैं जिसमें कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट से डिफरेंट डिफरेंट, और जो हमारे ओशन के अंदर का जो ग्राउंड है, दीज ऑल आर फ्लोटिंग ओवर दैट मैग्मा. और वो मैग्मा की मूवमेंट की वजह से वो धीरे धीरे मूव भी करता है. जो हमारा, इमेजिन करो
एक बॉल है, उसके अंदर फायर है और उसके ऊपर हमने सीमेंट लगा के, छोटे छोटे सीमेंट के टुकड़े लगा के हमने अर्थ बनाए हैं। सो इस तरीके से जो ऊपर के टुकड़े हैं वो भी फ्लोट करते हैं नीचे के मूवमेंट के कारण। जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं अर्थ के ऊपरी सरफेस पे, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है कि दीज आर स्मॉल हिल टाइप थिंग्स, पहाड़ों के जैसे छोटे छोटे होते हैं, बट दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। जब हवाएं चलती हैं तो ये बनते हैं, और जब हवाएं दूसरी डायरेक्शन में होती है तो ये दूसरी साइड बनते हैं। तो दीज आर लैंड सैंड ड्यून्स। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्हाट आर एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। सो नेम में ही आप देख सकते हो एंडो है और एक्सो है। एंडो मीन्स इंटीरियर, एक्सो मीन्स आउटर। द मूवमेंट ऑफ अर्थ इज बेस्ड अपॉन of controlling forces which are of two types, endogenic force and exogenic force. So अर्थ की मूवमेंट को दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं, which are known as endogenic forces and exogenic force. Endogenic means these are the forces that act in the interior of the earth which are sudden in nature. These forces create endogenic movements such as plate movements resulting in creation of earthquake, volcanic eruption and landslide. एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है वैसी फोर्स जो अर्थ के अंदर से हो रही हो। अर्थ के अंदर कैसे फोर्स होती है, जब अर्थ के ऊपर की जो प्लेट्स होती है जिससे हम लोग हैं, वो जब मूव करती है और वो दो प्लेट्स आपस में जब टकराती है, सो इट क्रिएट्स लाइक अर्थक्वेक। उनके टकराने से अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी पड़ते हैं, एंड लैंडस्लाइड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। These are the forces act on the surface of the earth. These create exogenic movements such as the action of wind, erosion and deposition, water, and these types of forces together create the relief feature on earth. For example, a mountain is created by endogenic force which then weathered and reshaped by exogenic forces over the years. These explains the earth movement. Okay, एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है, जो अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स लग रही होती है, अर्थ के बाहरी सरफेस पे, अर्थ के बाहरी सतह पे जो फोर्स लग रही होती है, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्स। जो अंदर से नहीं आ रहा है, जो बाहर से उसके ऊपर लग रहा है। ओके, सो जैसे कि तेज से हवाएं चलती हैं, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्स। जब वाटर उस पर आता है, सुनामी आता है, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। और एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स दोनों मिलकर अर्थ को अलग अलग शेप देती है। फॉर एग्जांपल, जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, माउंट एवरेस्ट, आप जानते हो माउंट एवरेस्ट को, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स एंड माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। ये भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से बने हैं। सो इमेजिन करो, when two things are colliding, आपने देखा होगा when two cars hit each other, जब दो कार आमने सामने हिट करती है तो उसका जो बोनेट होता है, आगे का जो हुड होता है, वो उठ जाता है माउंटेन के जैसे। ऐसे जो ऐसा सरफेस है वो टकराने के बाद ऐसे हो जाता है। सो दिस इज हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन टू प्लेट्स आर कोलाइडेड, देन इट इज फॉर्म माउंटेन। सो माउंटेन्स एंडोजेनिक फोर्सेस से बना है, बट रेगुलर हवा से, पानी से, और इससे उसकी वेदरिंग होती है और उसका शेप थोड़ा चेंज होता है। अर्थ को चेंज करने के लिए एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों ही चीज़ों का रिस्पॉन्स है। ओके, इन दिस टेबल यू कैन सी व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस एंड व्हाट आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। पहले हम देखते हैं व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड लैंडस्लाइड। दीज आर सडन फोर्सेस, जो अचानक से हो जाए। अर्थक्वेक हमें पता नहीं चलता कब आ गया। अदर थिंग इज डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स। ऐसा चीज़ जो काफ़ी समय बाद होता है, विच इज़ डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, विच इज़ लाइक बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक फोर्स मीन्स इरोजनल एंड डिपोजिशन। इरोजन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन, और दूसरी जगह से जाके कहीं पे कलेक्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। रिवर्स हैं। रिवर्स क्या करती हैं, पहाड़ों से सिल्ट लेके आती है और उसको लैंड्स पे डिपॉजिट कर देती है। विंड
हवा विंड इरोजन करती है, सी वेव्स से भी इरोजन होता है, ओके, and glaciers. So these all are responsible for exogenic forces. So हमने देखा what are endogenic forces and what are exogenic forces. Okay. So let's see the next page and here it is written one more thing. Did you know? क्या आप जानते हो? So it is written here. Meteorology is the branch of science dealing with the study of Earth's atmosphere. It has a major focus on weather forecasting. It is also called the science of weather study. Okay, so जब आप आगे पढ़ाई करोगे, आप अगर साइंस लोगे, आप बीएससी करोगे, उसके आगे जब आप पढ़ोगे, so you will get different options. Okay, so there will be different studies of science. साइंस की दूसरी दूसरी पढ़ाई होती है and there is one study of science which is meteorology. So meteorology में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर और वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं. जब हमें पता चलता है कि आज के टेम्परेचर मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, हवा चलेगी, बारिश होगी, these all information we get from meteorological department of India. Okay, so now let's see what is the theory of continental drift. हम इसे पढ़ते हैं. On 6 Jan 1912, German meteorologist Alfred Wegener Alfred Wegener attempted to explain the distribution of continents and oceans. This is known as Wegener's theory of continental drift. In this theory, it was proposed that millions of years ago, all land masses were joined together into a supercontinent called the Pangaea, which was broken into pieces and called continents. This theory was initially rejected by many scientists due to the lack of any motive mechanism. So, theory of continental drift बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है. 6 जैन 1912 को जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, उसकी वेदर के बारे में पढ़ते हैं, known as meteorologist, जिनका नाम एल्फ्रेड वेचनर था. He said that पहले सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग नहीं थे. वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया एंड यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. सो पहले ये बताते हैं कि सब एक साथ थे. ओके, और अगर आप अभी भी मैप को देखो, सो यू कैन फाइंड दैट यू कैन जॉइन देम टुगेदर, एक पजल के जैसा जिसको आप एक साथ जॉइन कर सकते हो. वो कहते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ हैं और एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था हमारा जिसको कि हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, लेकिन बाद में हो सकता है टेक्टोनिक प्लेट से या अर्थक्वेक से या किसी चीज़ से वो टूट गए और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए. सो अर्लियर इस थ्योरी को हम कोई भी नहीं मानता. वी डू नॉट नो वेदर इट वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट, बट दिस थ्योरी is very interesting. This is known as theory of continental drift. Okay, now let's see what is the theory of plate tectonics. Theory of continental drift was improved upon by Arthur Holmes and now it is called the theory of plate tectonics. The main features of this theory are as follows. So जो continental drift की theory थी जिसको कि जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेजनर ने बनाया था, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बनाई गई आर्थर होम्स के द्वारा. एंड उसकी जो मेन फीचर्स हैं वो हैं द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स. जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का आउटर पार्ट है, इज मेड अप ऑफ प्लेट्स जिसको कि हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. देयर आर 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स. 6 बड़ी प्लेट्स हैं और 20 छोटी प्लेट्स हैं विच फ्लोट इंडिपेंडेंटली, जो कि अर्थ के ऊपर फ्लोट करता है बिकॉज उसके नीचे तो लिक्विड है ना, तो लिक्विड पे चीज़ें फ्लोट ही तो करेंगे. एंड द प्लेट्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली. सो अंदर की जो प्लेट्स वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, चल रही है. द रेट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स इज वेरी स्लो विच मीन बी फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर. सो एज यू नो दैट स्पीड्स इज वेरी स्लो, जो कि कुछ मिलीमीटर है. मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इज लेस देन दिस. सो इतना कम मूवमेंट एक साल में अगर होगा, सो इट विल बी अननोटिस्ड. उसे हम कहाँ से नोटिस कर पाएंगे.
The ocean floors are continuously moving, spreading from center, sinking at edges and being regenerated. So जो ओशन की प्लेट्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है सेंटर से और एजेस की तरफ. The energy required for the movements of plates is produced by the internal heat of the earth. जो अर्थ के अंदर मैग्मा प्रेजेंट है, जो अर्थ के अंदर मॉल्टन लावा प्रेजेंट है, that creates energy to float the plates. Tectonic activities like earthquake and volcanic eruptions occur along with प्लेट मार्जिन्स. सो दैट्स व्हाट हैपन जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक और ये सारी चीज़ें होती हैं. द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स कैन नॉट be even felt until and unless the plates interact with each other along with their boundaries. Human beings can feel tremors of interaction through earthquakes. The tectonic plates may diverge from each other, converge with each other, or slip past each other. Thus, there may be three types of plate movements: divergent movement, convergent movement, and lateral slipping. सो जो अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है बच्चों, वो हमें ज़्यादा फील नहीं होती है जब तक कि कुछ आपस में वो टकराए ना. सो जब वो आपस में टकराती है तो हमें छोटे मोटे झटके फील होते हैं, अर्थक्वेक्स फील होते हैं. तो टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज होती है एक दूसरे से दूर दूर जाके, एक दूसरे से फैल के बनती है, एक दूसरे में सट के बनती है, और कभी कभी एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच आर नोन एज डाइवर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट एंड लैटरल मूवमेंट. ओके, सो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग चैप्टर. सो इस वीडियो के बेसिस पे जो भी आप क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कर सकते हो, ट्राई टू डू दैट, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.